Everyone, so today it's a matter of great honor for me, and I'm a proud teacher today to interact with the two of my favorite students, Harpreet and Simran. So, today my interaction is little different. I normally interact with so many selected candidates who get selected and they join the organizations. But this interaction is special because Harpreet has 10 plus years of experience in very prestigious Maharatna company, the Energy of India IUCL, and Simran has almost going to be now completing his 5 years. He's in IUCL now. Both are brothers, Singh brothers from Chandigarh, and today we'll be discussing a lot of things about IUCL. Not related to like how to crack interview, how to crack GD, not that, but it is related to life in IUCL, why somebody should think of serving in this great organization. So उसके बारे में हम discuss करेंगे. So Harpreet, great to have you here with me. Sir. Okay, and Harpreet, I remember you got into IUCL in the very first attempt, I mean immediately after engineering, and it's a wonderful organization. So today I'll be discussing a lot of things with you, especially related to the organization IUCL and why somebody should think of leading his or her career in IUCL. So I start with my first interaction point, and that is related to you. आपका जो background, academic background, and when did you do engineering, which branch, and now what are you presently in which designation, which location you are, which profile you are in IUCL? Thank you, sir. I started my mechanical engineering in the year 2009, and I have completed in 2013 from Punjab University, the Department of University Institute of Engineering and Technology. And 2013 में ही, along with my academic the last semester, I have started preparing for my GATE exam. And in 2013 February we have given the exam. It was my first attempt, and I scored All India rank 41. And after that there were a lot of opportunities across the many companies for the selection after the GATE. I have given many interviews, and ultimately I chose for going into the Indian Oil Corporation. And since 2013 till 2024 I am in IUC only. I have been assigned different assignments related to my interest. I joined as an engineering officer. First posting was in Pune, where I completed the major project for Indian Air Force. After that I was in Jalandhar. Again I was handling major engineering projects there in Jalandhar. And since 2021 I was transferred from Jalandhar to Chandigarh, and I'm here handling the engineering projects across the region of Ladakh, Jammu and Kashmir, Chandigarh, Punjab, and Himachal Pradesh. Wonderful. So you have shifted, how many locations you have shifted, Harpreet, in these 10-11 years? Sir, in 11 years it is my third posting. Okay. The first was in Maharashtra for the tenure of 3.5 years. Then it was in Jalandhar for the tenure of 4 years. And then 2021 since 2024, since last 3 years, I am here in Punjab State Office, Chandigarh. So Harpreet, today I'll be asking you many questions which normally students ask us, and they have apprehension in their mind. One of the questions they normally ask is like, after how many years they get transferred, और कितने साल एक जगह पे रहने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. एंड सेकंड क्वेश्चन इज लाइक, सपोज दे आर सम पर्टिकुलर प्लेस, लाइक दे आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब, एज यू आर फ्रॉम पंजाब, तो व्हेन डू दे गेट चांस टू सर्व इन योर ओन होम स्टेट, एंड कितना टाइम आप उस होम स्टेट या नियर बाई योर होम यू कैन स्टे? Sir, I think it is an opportunity which Indian Oil grants us. With me being born and brought up in Punjab only, got the opportunity to spend 3 years of my life in Maharashtra. Okay. The culture, the interaction with the local people which I have heard, the learnings which I got from there have helped me involved in my personal level also. Okay. So in general, the place of posting, the tenure is for 3 to 4 years, and you get transferred from there until unless you are handling a specific assignment which require you to be stationed there for a longer period, like 1 more year extension can be given, or generally after 3 to 4 years you will get transferred from your one place of posting. Okay. Harpreet, I remember that when you cleared GATE exam, your rank was, I think, 41. Yes, sir. And with that rank, I think you will get everything, all the public sectors. Yes, sir. And you have got many public sectors also.
why you decided to take IUCL, and do you think your decision was right at that time? Sir, my decision was perfect, and I still cherish my decision, and I'm very very happy in Indian Oil. And the reason why I chose Indian Oil was with discussions with my seniors, with my father, and with my family. What we saw was, let us. We are having the multiple opportunities across various sectors. Like after GATE, you get the opportunity. EHEL, NTPC, GAIL, BPCL, IUCL, HPCL. We all know that these companies are linked with the different sectors of the country. Like BPCL and NTPC are the more of like the energy sector, Right. and Indian Oil, BPCL, HPCL are more of like the petroleum sector, Right. and accordingly GAIL is with the gas and pipeline sector, and so on, like the banking sector, BSNL, telecommunication, everything. Right, right. So while choosing the company, नॉर्मली हम लोग एज अ स्टूडेंट्स, जब मैं उस स्टूडेंट के लेवल पे था, उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, वी जस्ट से कि भी मुझे किसी भी कंपनी में मिल जाए, एंड सेकेंडली अगर मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शन है तो मैं अपने दोस्त से पूछ लूंगा कि भी पर्क्स किसके ज़्यादा है, सैलरी किसकी ज़्यादा है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, वर्क कल्चर किस में अच्छा है, किस कंपनी में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं. Okay. ये उस तरीके, दैट वाज अ पर्सपेक्टिव. बट व्हाट वी सॉ इज कि यू आर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग योर लाइफ इनटू द कंपनी. अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी वेलबींग, आपकी लाइवलीहुड, आपकी अगली जनरेशन का लाइवलीहुड उस कंपनी की वेलबींग के साथ में डिपेंडेंट है. इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, लाइक वी आर हैविंग द आइडिया दैट द पेट्रोल, डीजल, ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग सोल्ड and it will keep on getting sold in the market, and the demand will increase with increase in the population, with increase in number of cars, scooters and everything. So it is a growth company. So we have I just rode on the horse which is already racing and was increasing its speed. So what I see कि अगर मैं बाकी पैरामीटर्स को देखता कि मैं सिर्फ सैलरी से कंपेयर करता या मैं जो चीज कंपेयर करता, आज की डेट में इंडियन ऑयल इज गिविंग मी द बेस्ट सैलरी, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट you can say the livelihood and the culture of among the companies very very best, because the company is ultimately the profit making company. Last financial year the net profit of Indian Oil was like 40,000 crores. Okay. And you can see the 40,000 crores the company which has earned, and it has come to the company. Obviously the company will expand like anything. Yes. Every employee will get benefit of that, the perks of that. You will enjoy. There would be the work culture will ultimately, हमारे घर में भी अच्छी खासी आमदनी हो रही है तो घर में सारे खुश रहते हैं, और अगर नहीं है तो खर्चा चलाने के लिए नहीं है तो घर में किड़किड़ शुरू हो जाते हैं. that can be replicated to a bigger scale for a company. So it is like the family in the Indian Oil, but since everything is working perfectly fine, we are growing continuously. So the pipeline network, the net worth, you can see, I was reading in the report, the net worth of Indian Oil Corporation currently is 2.4 lakh crores. You can see the scale of the company in which we are the family in which we are the part of. So that way we are very very happy, and the journey has been perfectly fine, and I'm seeing more growth in coming future. Wonderful. So Harpreet, I have a couple of more questions to ask you, but before that I'll first go to Simranpreet. So Simran, you are going to complete almost 5 years in Yes, sir. IUCL, and your rank was even better than rank of your brother in GATE, and you chose IUCL. And needless to say, I mean, you got guidance from your brother, and by the time you joined IUCL, you were already having, experience of your brother, satisfaction level of your brother, that made you decide, and you joined IUCL also. Simran, I want you to tell us again about you first, your academic background, and about your journey, little bit, what are you doing from where you started in IUCL, and then I'll ask you a couple of questions. Sure. So thank you, sir, first of all, for having me here on Gooding. And I'm basically a mechanical engineering graduate from Punjab University, from the same UIT department. And I graduated in 2018, and then I went to NITI Bombay for Yes. project management. I was there for one and a half year. And then I appeared for GATE exam in 2019. And then I finally joined IUCL. And since then I joined IUCL at Amritsar divisional office. I was there for 4 years. And now I am presently posted at Chandigarh divisional office and looking after Rupert sales area. So I joined in engineering department,
and presently I'm into retail sales and under that same marketing division. So that's about the career background. Wonderful. Simran, I know you since you were in, I think, schools, and you were preparing for your JEE exams and all, and then you joined engineering, and then you cracked this exam. You went to NITI Bombay that time, and now it is IIM Mumbai, and then IUCL. So I've seen a transformation in your personality. I can clearly, I clearly remember you as kid preparing for physics, chemistry, and everything, and now as officer in IUCL. I'll ask you a very straight question. Like I saw transformation in your personality. One, when you joined engineering college. Two, when you joined NITI. Three, when you joined IUCL. I've seen that as a teacher, transformation in your personality. NITI Bombay, when you went and I met you after 6 months in NITI Bombay, I could see that huge change in your personality which NITI inculcates. That is wonderful organization, institute in fact. And then IUCL, and it was a tough decision for you to shift over to IUCL. There are so many such students, there are so many such individuals who get into very good academic institutes and they feel like shifting to this public sector, which are the best employers. Decision is not simple, because equally good opportunities you will get from those academic institutes also. Now I want your view on that how such decisions should be taken. What are the parameters for someone who is actually in the similar kind of situation, who is having on one hand very good academic institute in which he is pursuing masters, and he is going to get very good option after that, and at the same time he is getting organizations like IUCL and wonderful organization, and he is to pick up one as of now, because next time he may not get public sector. So how to take these decisions? So okay, so like going back to my engineering days when I was doing engineering, like in the second or third year, I have seen my elder brother. I have seen, I was quite familiar with the IUCL culture. And वो सर एक चीज़ होती है ना, like you that keep in your mind कि हाँ ultimately after engineering you have to join that kind of organization. Yes. So that goal was there, sir. In 2018, I was when I first appeared for the GATE exam, I got around 900 rank, 800, 850 rank. And I appeared for the interview but could not clear because weightage gate का रहता है. But at that time my goal was very clear कि मेरे को IUCL join करना है, not any other oil company or other oil मतलब Maharatna company. So that goal was there, but I chose not to sit at home. मेरे को NITI Bombay का option मिला and I joined and took that opportunity. And honestly sir, NITI का जो एक एक्सपीरियंस था, आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था. पर्सनली जो मेरे में क्वालिटीज़ इनकलकेट हुई हैं, जो एक्सपोजर मुझे मिला है, लाइक यू गेट टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल जिनका ऑलरेडी 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन कॉर्पोरेट सर्कल. वो आपके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ आप रूम शेयर करते हैं, टाइम स्पेंड करते हो, केस स्टडी सॉल्व करते हो. रात को बैठ के हम लोग GDs की जो हम इंटरव्यू हम यहाँ पे देते हैं नॉर्मली आफ्टर गेट एग्जाम, उसका आई थिंक 5-6 टाइम्स का जो लेवल था वो केस स्टडीज GDs हम लोग करते थे. सो दैट हैज़ रियली हेल्प मी सर टू इम्प्रूव इन अ लॉट ऑफ मतलब स्किल्स एंड मैनर्स. सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आई वाज एबल टू क्रैक द गेट एग्जाम इन द सेकंड अटेम्प्ट, ऑल्दो मैं ज़्यादा टाइम सर नहीं दे पाया था फॉर द गेट स्टडीज इन माई सेकंड अटेम्प्ट, बिकॉज आई वाज बिजी विद ऑल द academics and the internship process which is held at NITI Bombay. But yes, after like I got 1.5 month एग्जाम से पहले, एंड आई लकीली आई गॉट द गेट एग्जाम क्लियर. बट वो ऑब्वियसली सर इट वाज अ टफ कॉल कि आप NITI छोड़ के उसी कंपनी में जा रहे हैं जो आपने पहले सोचा था. बट देयर आर अदर ऑप्शंस. आपको 1 साल हो चुका है, यू हैव गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, जो अच्छी MNCs में है, 40 लाख का पैकेज है, 60 लाख का पैकेज है, दुबई में पोस्टिंग है, UAE में पोस्टिंग है, गूगल में जाते हो आप, हर कंपनी जो यू नेम एनी कंपनी आपको NITI में वो रिक्रूटमेंट के लिए मिलेगा. I also एक internship भी सर मेरे को हो गया था. I also got an PPO there, but still I chose to coming back to IUCL. एक तो वो था कि एक वो था दिमाग में कि हाँ IUCL ज्वाइन करना, that goal was there, and I chose कि एक सर जो प्रोफेशनली मतलब ठीक है आप मतलब MNCs में आप काम कर रहे हैं, that is good, बट मेरा पर्सनल सर आई थिंक ये हर स्टूडेंट का पर्सनल कुछ ना कुछ रहता है हमेशा कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना है. सो मेरा सर डिसाइडेड था इवन आफ्टर 1 year एट NITI, मेरे को क्लियर था कि मेरे को IUCL जैसी कंपनी में ही जाना है एंड उसमें अपना करियर अपना सेट करना है. एंड जो प्रोफेशनल ग्रोथ आई थिंक मैंने IUCL कंपनी में आने के बाद देखी है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल सर.
लाइक IUCL जैसी एक कंपनी है जो फ्रॉम द वेरी सिंस द डे आई जॉइंड IUCL इन 2019 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर दे देती हैं. लाइक आई वाज इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हम लोग लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस का कैश फ्लो रहता है नॉर्मली. वी यूज्ड टू गेट साइन ऑल द बिल्स क्वालिटी चेक करके. अगर एक कंपनी ऐसे आई डोंट थिंक और इतनी इजीली आपको इंडिया में कोई कंपनी मिलेगी जो इतना ट्रस्ट फैक्टर रखती है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको वो साइनिंग अथॉरिटीज दे रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि आप लैक्स ऑफ करोड़ का कैश फ्लो अपने हाथ से आप निकाल सकते हैं. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की वजह से सर आई थिंक जो इम्प्रूवमेंट है आपके करियर में जो अभी तक मैं देख रहा हूँ लाइक फ्रॉम द पास्ट ईयर, दैट इज कमेंडेबल सर. सो आई थिंक दैट इज वाज अ गुड डिसीजन फॉर मी. आई कैन नॉट कमेंट कि वो IUCL बेटर है नीटी से या नीटी बेटर है. ऑब्वियसली उनका अपना दोनों का एक महत्व है दोनों इंस्टीट्यूट्स का. But yes, I chose to be in IUCL. Wonderful. So Simran, I'll also ask you one more question that I think will match your seniority rather than Harpreet's seniority. Student जैसे कोई select होता है IUCL में, I mean many of the students who aspire to be in public sector, उन्होंने सुना हुआ है. Not everybody has that luxury to have brother in IUCL and seeing from so close that what is the lifestyle of person who is in IUCL. सुनते हैं अपने सीनियर से कि साहब बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा सैलरी है. आई विल आस्क यू लाइक हाउ द लाइफ चेंजेस. सपोज टुमारो यू गेट अ जॉब इन IUCL, हाउ द लाइफ चेंजेस इन ईयर, 2 years, 3 years, हाउ योर लाइफ हैज चेंज्ड वंस यू जॉइन IUCL. लाइक सर फ्रॉम द इनिशियल डेज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. स्टार्टिंग में तो सर आप जब इन्वॉल्व होते हैं एक नया फेज आता है, आपका बैंक बैलेंस सबसे पहले बढ़ना शुरू होता है ना. जो आप सोचते रहते हैं कॉलेज में कि यार जो आप रुक जाते थे कि मेरे को ये लेना है, ये फोन लेना है, ये गाड़ी लेनी है, आप रुके रहते थे, वो आप भी खुल जाते हो. वो आप यू गेट टू बाय ऑल द थिंग्स, ऑल द स्टफ. तो एक जो थोड़ा बचकाना मैं कहूँगा एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है स्टार्टिंग के 2-3 महीने में. आई थिंक आपको मिल जाएगा. देन व्हेन यू गेट फेमिलियर विद द कंपनीज प्रोफाइल, जो एक इंडक्शन पीरियड सर नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, IUCL में भी है. उस इंडक्शन पीरियड में यू गेट टू नो कि यार एक्चुअल में कंट्री चल कैसे रही है. लाइक वी से वी आर एनर्जाइजिंग लाइफ्स. जितना इस टाइम मतलब इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, जितना एनर्जी का डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए somebody is there and you are part of that organization. जो आप मतलब I cannot go in detail, but yes, energizing lives जो एक टैगलाइन है that's sufficiently says कि हाँ उसका क्या मीनिंग है. सो लाइफ चेंज होती है. यार दोस्तों से आपके कांटेक्ट थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे. पर्सनली आप थोड़े से स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज आएगा. वो आई थिंक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वो चेंज डिफाइंड है कि आपको आना ही आना. यू गेट टू अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाओगे. हाँ एक एक्सपोजर जरूर मिलेगा सर जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं. पहले हम लोग कॉलेज में प्रोजेक्ट्स हैंडल करते थे, कोई टीम लीड कर लेते, छोटी मोटी बात. अब आप लोग एक मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं जिसमें आप कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैंडल कर रहे हैं जो काफी जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कंट्री के ऊपर. सो दैट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इज देयर जो आपको सर मोटिवेट करता है अपना जो पूरा आपका डेली का रूटीन है उसको फुलफिल करने के लिए और अपनी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए. अच्छा Simran, I'll ask you a question which normally students say in their interviews also, but they are not very clear about what they say, and that is work life balance. So ये वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग हर इंडिविजुअल के लिए अलग सब्जेक्टिव इसका मीनिंग है. आप नीटी में भी रहे हैं और आपने वहाँ काफ़ी हेक्टिक लाइफस्टाइल लीड किया है एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स. सो जब आप ज्वाइन करते हैं ऐसा बड़ा कंपनी IUCL जैसा कंपनी, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? मतलब वर्क कल्चर में हरप्रीत से पूछूंगा ओवरऑल, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं कि आप ऑफिस गए, कितना हेक्टिक होता है, कितना बिजी होता है. बिकॉज आप उस एज ग्रुप के बच्चे के लिए सोचो, स्टूडेंट के लिए जिसको आपने बोले गाड़ी आ गई, फ़ोन आ गया, सब आ गया, तो उसको टाइम मिलता है और किस तरीके से वो बिजी रहता है या कैसे उसको प्रोफाइल मिलता है, वो क्या होता है इसमें? सर आई थिंक ये ना इंडिविजुअल का अपना मैं कहूँगा सर रादर लाइफस्टाइल है. हाँ जी. अगर एक कोई इंसान है जो सुबह जल्दी उठता है, थोड़ा हेल्थ के लिए स्पेंड करता है, देन उसका माइंड हेल्दी है, बॉडी उसकी हेल्दी है, वो काम में भी सर ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा. अगर वो 6 बजे 7 बजे, कोई लोग 5 बजे फ्री होके अगर वो वापस घर आ रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम दे रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से सर एक वेल बैलेंस्ड लाइफ हम उसको कह सकते हैं. right. वही सर सेम कंपनी में आई हैव सीन मेनी माय कोलीग्स, बट आई थिंक एक अगर इंडिविजुअल है जो एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहा है, एफिशिएंटली अपने काम को परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक वो सर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो एक बैलेंस वर्क कल्चर मिल जाएगा. यू कैन नॉट से कि आप इस कंपनी में जाओगे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस्ड है, इस कंपनी में नहीं है. मेरे हिसाब से हर कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल जाएगा अगर इंडिविजुअल इज पुटिंग द एफर्ट्स, ही इज एफिशिएंट, ही इज स्किल्ड और अपने काम को एफिशिएंटली खत्म कर रहा है. Okay, Simran, very straight answer from your side I will expect.
वाई समवन शुड थिंक ऑफ ज्वाइनिंग IOCL? क्यों करना चाहिए उसको? सर अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, इफ़ हाँ जी। यू आर सेटिंग अप, आपको डिसाइडेड है कि आपने अपनी कंट्री में ही सर्व करना हाँ है, जी। जो आपने कंट्री से लिया है, यू हैव डिसाइडेड टू गेट द थिंग्स बैक टू योर सोसाइटी, आपने इंडिया में रहना है, आई डोंट थिंक सर मेरे हिसाब से इंडियन ऑयल से बेटर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, प्रोफेशनली फाइनेंशियली एज वेल, एंड जो आपकी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो एक ऐसे मोटिव के लिए जो पूरी कंट्री को एनर्जी दे रहा है, तो दैट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन गिव यू फील अकम्प्लिश्ड फ्रॉम इनसाइड। ओके, सो दैट्स द रीजन सर आपको इंडियन ऑयल जरूर ज्वाइन करना। वंडरफुल। सो कमिंग टू यू हरप्रीत नाउ, हरप्रीत हम एक टर्म सुनते हैं कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है और ये IOCL का क्या है? You have now 10+ more years of service. I think you are the embodiment of this organization now, and you are the right person to whom I can ask this question कि कल्चर होता क्या है और IOCL का क्या है? To be very straight, sir, if you are coming back to your home and you are satisfied with your working environment and you are happy, it means you are spending your time in a good work culture. Work culture Indian Oil में which I have seen is that companies teaches you a lot. It when I joined my first posting in Pune, I was assigned with a major project of around 55 crores. Okay. And I was working under one senior. That was your first That posting. was my after my posting. That was the first project on which I was. After given how the many years of assignment. your service? It was my first posting First just after joining Indian Oil. And you were given this project. I was given this project. Along with this first project, I was given. I was assigned under one senior. Okay. Obviously, this kind of project cannot be given to a fresher, independently to a fresher. So my guide, the guide you can say, the mentor you can say, the mentor. Whenever I joined my place of posting, I was assigned with one of my mentor. Okay. The role of the mentor is to groom me and to get me indulged into the culture, or you can say the working of the corporation. The guide helped me in the very bits and pieces of my personal things also and in my professional things also. Okay. मैं शुरू से पंजाब में रहा, पंजाब के अंदर मेरी कॉलेज मैंने किया. इट वाज माय फर्स्ट, और हॉस्टल के अंदर इवन आई नॉट स्पेंट अ सिंगल डे, नॉट लाइक लिविंग. तो मेरी पहली पोस्टिंग पुणे महाराष्ट्र में थी. अब मुझे वहाँ पे भी जाना था, घर ढूंढना था, ठीक है, अब घर ढूंढना था, अपनी आने जाने के कम्यूट का अरेंजमेंट करना था, खाने का अरेंजमेंट करना था. इन सभी चीजों में कंपनी ने मुझे बहुत ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड की. शुरू से ही दे आर हैविंग द सिस्टम, दे आर हैविंग द पॉलिसीज की कोई नया रिक्रूट आ रहा है उसको इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए you will give the accommodation, you will give the food also. Okay. And the mentor was assigned to me for 1 year. She trained me, and she was basically the in charge of the project, and I was a site engineer under her. She trained me. Obviously I did some mistakes also because I was a new one, and I was बेसिकली कुछ नया जैसे करने का रहता है ना कि भाई ये असाइनमेंट मिला है, ऐसे करते हैं, या पहले से ये कंपनी में ऐसे करते आ रहे हैं. तो मैंने बोला कि नहीं मैडम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे करके ट्राई करते हैं. आफ्टर ये 3 साल का वो प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद में आई वाज द प्रोजेक्ट वाज फॉर द लेइंग द पाइपलाइन फॉर इंडियन एयरफोर्स, जिनके उनके जो सुखोई एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग देखते हैं, उनका ऑटो रिफ्यूलिंग का सिस्टम हम लोगों ने बनाया था. करीबन 5 किलोमीटर की पाइपलाइन हमने बिछाई थी एयरफोर्स एरिया के अंदर. उसके बाद में आई वाज पोस्टेड इन जालंधर. वहाँ पे द रेलवे साइडिंग मतलब जो हमारे वैगन्स ट्रेन्स के अंदर प्रोडक्ट भर के आता है, उस तरीके के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े टैंकेज के प्रोजेक्ट्स दैट आई वाज हैंडलिंग, एंड आई वाज पोस्टेड देयर नाउ अलोन. द कंपनी हैज इंटरेस्टेड द ट्रस्ट इन मी. मुझे फील करवाया कि आई एम वर्थ हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट्स. जालंधर के अंदर आई वाज माय 1 ईयर कैश फ्लो, द एक्सपेंडिचर आई वाज डूइंग ऑन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज 25 करोड़ ऑन एन एवरेज पर ईयर. मैं वहाँ पे 4 साल के लिए पोस्टेड था. करीबन 100-110 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन मैंने वहां पर खुद हैंडल किया था अलोन, पोस्टिंग एट द साइट. तो कंपनी ने उतना ट्रस्ट दिखाया मेरे अंदर, मुझे फैसिलिटेट किया, मुझे ट्रेन किया. इन सब चीज़ों ने मेरी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों को हैंडल करने का जो कॉन्फिडेंस दिया कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया तो कोई बात नहीं. सिंस यू आर हैंडलिंग दी प्रॉब्लम्स एट सच हाई स्केल्स, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप उसमें कंफर्टेबली सॉर्ट आउट कर ले जाते हो.
एंड देन आई वाज नाउ इन पंजाब स्टेट ऑफिस, जो अभी पहले मैं एक जलंधर टर्मिनल देख रहा था. नाउ कंपनी हैज गिवन मी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर और टू गेट इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 3-4 स्टेट्स. ओके. मतलब which I have mentioned earlier. So the continuous grooming, वर्क कल्चर ये मतलब इसी तरीके से ही डिफाइंड है कि आप अपने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन करो. मैं इंजीनियरिंग में कंटिन्यू करना चाह रहा था, कंपनी लेट मी टू डू इट इन द इंजीनियरिंग. मुझे उसी में इनकॉर्पोरेट मतलब इनकलकेट किया, ग्रूम करते गए और मुझे मतलब उस लेवल पे लेके गए. अब जब मैं वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ, जैसे करंटली लद्दाख जोन के बीच में वी आर कंस्ट्रक्टिंग टैंकेज फैसिलिटीज फॉर द इंडियन आर्मी. लद्दाख एज वी ऑल नो कि ड्यूरिंग विंटर्स पूरे इंडिया से 2 पासेस के थ्रू कनेक्टेड है, रोहतांग पास एंड जोजिला पास. स्नोफॉल की वजह से वो बंद हो जाते हैं. उस तरफ के जितने भी लोग हैं वो डिपेंड करते हैं वहां पर जितना प्रोडक्ट स्टोर हुआ उसी के ऊपर, क्योंकि उनके वहां पर बिजली भी नहीं है, जनरेटर से ही उनके घर चलते हैं. अब आप इमेजिन करो कि अक्टूबर के बाद में जब वहां पे तेल की सप्लाई ही बंद हो गई तो बिजली भी चली गई, सब चला गया, तो हाउ पीपल विल लिव देयर. नाउ कंपनी इज गिविंग अस इन टाई अप विद इंडियन आर्मी कि हम वहां पर उतनी बड़ी स्टोरेज बना रहे हैं, सो दैट अभी लास्ट ईयर वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट कि नाउ वी आर हैविंग द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट लेवल कि हमारे मेहनत करने की वजह से अब अक्टूबर में उस तरफ कोई चैन से बैठा है इंडिया के उस पार्ट के बीच में. द सेटिस्फेक्शन level which we are getting in working in this company is to that level. So okay. That is what the culture or this company offers to us. अच्छा अर्पित, if I ask you like how company takes care of you and your family? Sir, I think प्रोफेशनली आई हैव टोल्ड कि कंपनी ने कैसे मुझे पर्सनल लेवल और हर लेवल पे ग्रो करने के लिए सपोर्ट किया. एंड रिगार्डिंग माय फैमिली, you are getting family के लिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल दी perks you are getting, the salary packages you are getting. सर अल्टीमेटली हम लोग जॉब करने के लिए क्यों ढूंढते हैं कि to do what we love to do, number 1. Number 2, from that we get a good living. ये दोनों पर्पस सॉर्ट आउट. अब पहले पर्पस में तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड माय सेटिस्फेक्शन दैट हाउ हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माय वर्क. सेकेंडली द कंपनी इज प्रोवाइडिंग द इनफ यू कैन से द सैलरी ऑफरिंग्स और द पैकेजेस और द पर्क्स, एवरीथिंग दैट आई नेवर हैव टू बॉदर कि मेरे पास में कभी कुछ अमाउंट की कमी है या मेरे को फैमिली के लिए कुछ लेना है और मैं नहीं ले पा रहा हूँ, या आगे जो चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए कंपनी गिव्स दी फी कंट्रीब्यूट्स इन द फीस टू सम एक्सटेंट. आपको हर 2 साल के बाद में गिविंग यू दी लैपटॉप्स, दी मोबाइल फोन्स, गिविंग यू सम लोन फॉर द कार्स, सो दैट आपकी जो फैमिली पर्सपेक्टिव से आप सेटिस्फाइड रहो, आपको कभी भी उनकी तरफ की वजह से परेशान ना होना हो, जिसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है दैट यू गिव 100% टू योर कंपनी. द कंपनी हैज टेकन केयर एवरीथिंग इन योर हाउस होल्ड, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कंपनी की तरफ. सो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी it is taking care of the family also. Wonderful. Now Harpreet, I would like to know about the promotional hierarchy of IOCL. जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ साल के बाद आपका क्या डेजिग्नेशन होता है, आपका भी डेजिग्नेशन क्या है, तो डायरेक्टर तक पहुंचते पहुंचते डेजिग्नेशन कैसा होता है, प्रमोशन कैसा होता है? Sir, that is very interesting thing to know. The chairman of the company even has joined in a grade A officer. Okay. There is no you can say the in between incubation or in between recruitments for those higher posts. Okay. The capable candidate, the capable officer who has given the you can say the sweat and blood to the company will get promoted to up to the chairman level. Okay. So when we join Indian Oil, we are given the officer in grade A. That is our title. The designation varies with respect to the department in which you join. Like I joined in engineering department, so my first grade rank was engineering officer, and then I was senior engineering officer grade B, and it can be reflected assistant manager engineering, then grade C, D, E, F, and so on. The grade I is basically the executive director of the company, then the directors, and then the chairman. The recruitment of directors and chairman is by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Obviously वो Indian Oil के ही most capable candidates को prefer करते हैं उस
पोजीशन पे बैठने के लिए। तो ग्रेड ए बी सी में आप नॉर्मली आपका एक साल का एक टेन्योर आपका 3 से 4 साल का रहता है। तो ग्रेड ए में यू वर्क हार्ड, यू गेट रेटिंग्स एवरी ईयर। आपकी रेटिंग्स के कॉम्युलेटिव बेसिस पे द सिस्टम इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। आपने जो कॉम्युलेटिव आपकी रेटिंग आई उसके बेसिस पे यू विल हैव द कंपटीशन अमंग अदर्स एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रमोटेड टू ग्रेड बी एंड देन ग्रेड सी एंड सो ऑन। आप काम करते चले जाओ एंड वो रेटिंग सिस्टम it is basically the mathematical model which has been developed by the country. There is no subjectiveness to one extent and this is how the hierarchy in the system works. Okay. So Harpreet, one thing I wanted to ask you is अभी IUCL का इंटरव्यू शेड्यूल आया है, बहुत सा बच्चा इंटरव्यूज वगैरह के लिए जा रहा है और आपने खुद बहुत से PSUs को क्वालिफाई किया है और क्लियर किया है। आई सिंपली आस्क यू कि जब कोई सिलेक्शन पैनल जो हैं बैठा हुआ वो किसी कैंडिडेट को देखते हैं तो उससे उनको क्या एक्सपेक्टेशन होता है? सपोज आई एम फेसिंग द इंटरव्यू एंड यू आर इंटरव्यूअर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट से कि उसमें होना चाहिए? व्हाई दे सिलेक्ट देम? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न दैट the scale of the project which I was assigned. I have given an example like 25 crores in 1 year. You will be assigning the responsibility of that level. So any kind of immaturity or you can say the casual behavior will give a big blow to the company. Yes. So you have to be very very mature in handling the assignments, tough tasks also. And आपके पास में वो डिसीजन नेस होनी चाहिए कि मुझे अगर ये असाइनमेंट्स के बीच में मतलब विच इज़ बेटर फॉर द कंपनी, मतलब किस तरीके से मुझे प्रोसीड करना है। अल्टीमेटली अगर कंपनी आपको मान लीजिए 20-22 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का पैकेज ऑफर कर रही है पर ईयर, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है और कंपनी की एक्सपेक्टेशन है आप कम से कम उनको 2-2.5 करोड़ रुपए की सेविंग या अर्निंग करके दीजिए। दैट इज वाई द कंपनी इज ग्रोइंग विद टाइम। सो आपका वो इंटेंट होना चाहिए दैट आई हैव टू गिव माई स्वेट एंड दिस थिंग टू द कंपनी, स्वेट एंड ब्लड टू द कंपनी एंड दी इंटेलिजेंस। मतलब अगर एक बच्चे के पास में इंटीग्रिटी और इंटेलिजेंस दोनों है, ही इज द बेस्ट कैंडिडेट। ओके, अगर दोनों में से कोई एक है, मान लीजिए किसी के पास में इंटीग्रिटी है बट इंटीग्रिटी ज्यादा है और कह सकते हैं इंटेलिजेंस कम है, वो कैंडिडेट चलेगा। लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है और इंटेलिजेंस ज्यादा है, दैट इज द मोस्ट रिस्की प्रपोजिशन फॉर द कंपनी। दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्रूटेड। जितने भी इंटरव्यू के पैनल होते हैं दे आर ऑल दी सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स एंड यू कैन सी जो वो ऑफिसर्स मान लीजिए वो ग्रेड एफ और ग्रेड जी जैसे हमने ABC से बताया उस रैंक के ऑफिसर्स एंड सीनियर मतलब ग्रेड H और I के ऑफिसर्स भी इंटरव्यू पैनल के बीच में बैठते हैं। यू अंडरस्टैंड कि वो when they joined as a grade A officer, they were the cream of cream in India. वो best brains of the company को इंडियन मतलब of the country को इंडियन वाले पहले रिक्रूट किया था। अब वो A ग्रेड से लेकर के H ग्रेड तक पहुंचे हैं, मतलब उनका 30-35 साल का करियर है। उन्होंने इस तरीके के असाइनमेंट जो मैंने अभी 8-10 साल का एक्सपीरियंस है वो 500-600-700 करोड़ रुपए तक के लेवल के डिसीजन दे आर टेकिंग। तो हाउ मैच्योर एंड हाउ सीरियस दे वुड बी विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो लेट अस नॉट ट्राई टू प्ले in front of them. Let us not try to hide anything in front of them. So you have to be yourself. You have to be humble, what I think. You should be keen to learn. Because there will be a lot of things in any phase of your life कि आपको कुछ सवाल पूछा या इंटरव्यू में पूछा आपको नहीं आता है. There is no need to play. I think it should be very very genuine कि सर I don't know that, I will learn about it or everything, मतलब second thing. मतलब the intent should be clear कि भी हाँ ये लड़का ठीक है, जेन्युइन है, कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी है इसके बीच में, इंटेलिजेंस एक सर्टेन लेवल तक है तभी वो इंटरव्यू के लेवल पे बैठा हुआ है, इंटेलिजेंस उतनी है उसमें, एंड उसके बाद में हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। ये लिमिटेशंस नहीं है कि मुझे 5 बजे के बाद काम नहीं करना है या वो, एंड दी एक्स फैक्टर विच यू सी कि हाँ यार इसको ये असाइनमेंट देंगे तो आई कैन स्लीप माई नाइट विद मतलब विद पीस कि हाँ ये लड़का संभाल लेगा, उस लेवल का कॉन्फिडेंस उनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इज योर इंटरव्यू विल नॉट स्टार्ट
the moment you sit in front of the panel. It will start from the moment you enter into the premises. Okay. You will never know who from which angle is seeing observe. you and is observing you and is making opinion about you. There will very very high chance that somebody from there who you seen outside कि पानी पीते हुए या चाय पीते हुए या कॉफी उठाते हुए जिसको आपने देखा था, वो आपको इंटरव्यू पैनल के अंदर बैठा हुआ मिले. इन बीपीसीएल इंटरव्यू आई हैव सीन दैट कि हम बाहर मतलब हम लोग गए थे तो कुछ कॉफी वगैरह था, तो एक सीनियर ऑफिसर्स केम, आई डिड नॉट नो हु ही वाज दैट, ही वाज स्टैंडिंग इन बिहाइंड माय लाइन, तो मैंने खुद हट के उनको दिया कि सर आप पहले ले लीजिए, आई विल टेक. कहते कैसे हो, फिर मैंने बताया इंटरव्यू टाइप, एंड दैट पर्सन वाज सिटिंग इनटू द पैनल. सो ही मेड द इंप्रेशन इन दैट वे कि भाई ही रिस्पेक्टेड द मतलब एल्डर, ही हैड द मैनर्स कि भी मैं आया हूं तो इसको दे दे, तो वहीं से ही वाज हैविंग दी. तो मुझे लगता है, आई डू नॉट नो, ही ऑब्वियसली डिड नॉट डिस्क्लोज, कि वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंप्रेशन शुरू में ही था, मतलब इट विल हेल्प यू. तो शुरू से ही यू ट्रेन, और अदरवाइज भी अपने लाइफ के बीच में भी हम्बल जाने दो चीजों को, मतलब लेट अस नॉट बी कि ये मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कूल रहने का. बहुत वंडरफुल आंसर हरप्रीत, क्योंकि इंटीग्रिटी वर्सेस इंटेलिजेंस का जो आपने बताया, नॉर्मली स्टूडेंट्स थिंक कि मेरे को हर क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड इन दैट प्रोसेस दे मेक ब्लफ आल्सो सम टाइम, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली डेंजरस. नाइसली सेड. हरप्रीत, लास्ट क्वेश्चन आपसे बिफोर आई ask for your message to the students. My last question is, you started with Pune first posting, now you are in Chandigarh, and this is your hometown, आप पंजाब से ही हैं. So what is the probability that somebody who is from Rajasthan या maybe Uttar Pradesh या Tamil Nadu, Andhra Pradesh, he will be serving in his home place, home state or hometown, और कितना टाइम उसको मिलेगा? Because that is something in the minds of students when they make up the decision, and this is also one of the criteria for them, that they want to be close to their places, they want to be with their parents or something. तो ये कितना feasibility होता है इसमें? Sir, honestly speaking, this reservation was with me also. जैसे मैंने बताया कि मैं हॉस्टल में नहीं रहा, मैं अपना घर से ही किया. बट जब मुझे पुणे में पहली पोस्टिंग मिली, दे वर वन ऑफ माई बेस्ट 4 years ऑफ माई लाइफ. द इंडिपेंडेंसी, द यू कैन सी द लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, मीटिंग इंटरेक्शन विद डिफरेंट पीपल विच आई हैव नेवर मेट इन माई लाइफ बिफोर, वो मुझे नहीं मिल सकता था. नाउ इट विल अपीयर कि उसको जस्टिफाई करने के लिए है. तो उसमें फैक्चुअल एक क्या चीज़ है कि इंडियन ऑयल इज अ महारत्न कंपनी, इट इज हैविंग इट्स ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया. इंडियन ऑयल के दुनिया की मतलब इंडिया की किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा ऑफिसेस रहेंगे पूरे इंडिया के अंदर, और ऑब्वियसली इट विल कवर ऑल दिस स्टेट्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री. सो इंडियन ऑयल इज हैविंग इट्स ओन सिस्टम. First of all, the priority of the company will come first, and then every year they ask for your mobility constraints, कि आप अपनी तरफ से 3 choices बता दीजिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो. आप उसको भरते हो अपने ऑप्शंस, नंबर 1 ये नहीं मिला तो 2 और 3, and the HR department of the company is working very well. They are compiling the request of all officers across all states, and उसके basis पे they are trying to put the officers to their desired place of posting. वो किसी ने हो सकता है होम टाउन मांगा हो, जैसे मेरे कोलीग ने स्पेशली पोर्ट ब्लेयर मांगा था, he wanted to be in अंडमान, कि तो he got the posting there. So somebody asked me in Leh कि I wanted to be in Leh for 3 years. So जो ये 3-3 साल का टेन्योर है, तो इसमें आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक तो आप मांगो, आप एक नई प्लेस एक्सप्लोर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप किसी क्रिटिकलिटी की वजह से कोई इलनेस या कुछ मेजर प्रॉब्लम है घर में, या मान लीजिए कोई मेडिकल इश्यूज है विद योर पेरेंट्स और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब दे कैन नॉट शिफ्ट विद यू, तो उस केस में कंपनी कहीं ना कहीं जो आपकी प्रेफरेंसेस है उसको कंसीडर करती है टू द एक्सटेंट पॉसिबल. एज पर पॉलिसी कंपनी इज नॉट बाउंड टू गिव यू दिस थिंग. आपको दे हैव हायर्ड यू फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, बट दे विल ट्राई टू अकोमोडेट जहां तक हो पाए. एंड ज्यादातर जो लोग हैं मतलब दे हैव बीन फाउंड सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, चाहे वो उनकी चॉइस की है, अगर नहीं भी है तब भी सिंस द कंपनी इज टेकिंग केयर ऑल अदर फैक्टर्स, यू आर हैप्पी देयर. Good. So again, Harpreet, very nicely explained, and this brings us to an end of this wonderful interactive session. बहुत अच्छा input आपकी तरफ से आया.
हरप्रीत, मेरे चैनल पे लार्जली वो क्राउड है जो ऐसे पब्लिक सेक्टर में जाना चाहती है, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एस्पायर टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू आर सर्विंग. सो एनी मैसेज टू ऑल दीज यंगस्टर्स हु आर लिसनिंग टू यू? सर, मेरे व्यू के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हैव योर लिविंग स्टाइल और हैव योर पीस ऑफ माइंड ऑन द टॉप. सबसे ऊपर आपको वहाँ सेटिस्फेक्शन है तो व्हेन यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल ऑल्सो ऑफ एनी कंपनी, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, सो यू आर सेटिस्फाइड कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ एंड आई हैव मतलब you have to be humble also कि I have learned a lot of things and I will keep on learning and मैंने अपने आप को इतना काबिल बना रखा है कि I will get some or the other job someday. So there is no need to rush, there is no need to hurry. You have to live your life very peacefully. कोई भी इंटरव्यू हो, let us not take कि नहीं हुआ तो मतलब लाइफ खत्म हो जाएगी या वो अपॉर्चुनिटी चलेगी, बिकॉज यू नेवर नो गॉड ने आपके लिए उससे अच्छा कुछ सोच करके रखा हुआ है. ये हम लोगों के जब सीनियर्स हमें बोलते थे हमें तभी थोड़ी फिल्मी बातें लगती थी, बट विद एज माई लाइफ हैज प्रोग्रेसिंग और 10-12 साल से हमने देखा थिंग्स हैव टर्न्ड इन माई फेवर. आई एम ब्लेस्ड, वो इसीलिए बिकॉज आई ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ. तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, इंजॉय करना है और लाइफ जीनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके सिमरन, सेम क्वेश्चन. कोई भी मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहें, दोज हु आर लिसनिंग टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको अपना कॉल लेटर आया है फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. एंड सेकंड चीज़, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, आई थिंक आप वो कैटेगरी से आप यू आर समबडी नाउ. अगर आपको IOCL ने कॉल किया है फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, यू आर समबडी. चेरिश दैट थिंग, इंजॉय करो उस चीज़ को, एंड आई थिंक कॉन्फिडेंटली बी योर रियल सेल्फ एंड कॉन्फिडेंटली आप जाओ इंटरव्यू प्रोसेस को करो, यू विल क्रैक इट. अगर आप में वो स्किल सेट है विच कंपनी इज रिक्वायरिंग, अगर आप में वो स्किल सेट है, जस्ट प्रे कि अगर आप कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है, दैट मीन्स दैट क्वालिटी आपके अंदर है, एंड डेफिनेटली वो अगर क्वालिटी आप कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच होती है, देन यू विल बी द राइट प्लेस. अगर आप राइट प्लेस में एक बार आप आ जाते हैं तो आपकी लाइफ आई थिंक सॉर्टेड है. अगर नहीं भी आती है, डोंट डिसहार्टन योरसेल्फ, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, है ना. सो जस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल who have got the call. Okay, so Harpreet, the moment I publish this particular video, students will have a lot of questions for both of you. I'll share the video with you, and if you find time, please try to answer the queries of the students, whatever they have direct questions for you. I'm sure that is okay with you. Sure. Okay, so thanks a lot Simran, thanks a lot Harpreet for your time. So friends, you have listened a wonderful session today with the Singh brothers, Simran and Harpreet, and also this session was important because आपको दो ऐसे इंडिविजुअल से IOCL के बारे में पता चला जो 5 साल या 10 साल एक्सपीरियंस सीनियरिटी वाले हैं. तो इनसे अलग पर्सपेक्टिव तुम्हें पता लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. जो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है, या कल्चर क्या होता है, या वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, या हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है. सो वो आई एम वेरी श्योर आपको उसका कुछ आइडिया लगा होगा. दैट विल गिव यू एन मोटिवेशन टू परफॉर्म एंड पुट एफर्ट, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में एंटर करना डिफिकल्ट होता है, नो डाउट, बिकॉज दे आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. एंड उसके लिए लेकिन अगर आप एफर्ट करते हैं फॉर सम टाइम्स, फॉर सम ईयर्स, देन इट इज़ वर्थ इट. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन. Thanks a lot for watching our video. Thank you both of you. Thank you, sir.